Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, today we will start our topic with atomic spectra. So what is atomic spectra? Suppose we will take some natural example to explain this concept of atomic spectra. Suppose we have a source of light. That source of light is called sunlight, and this source of light passed through a slit to make a light monochromatic, and after this passing through this slit, it will be put on a prism. That prism disperse the light into 7 colors. That 7 colors represent the Vibgyor. It is also represent the rainbow. It is also a natural example. So V represent the violet, I indigo, B blue, green, yellow, orange, red. And this after it means it clear that the sunlight has all type of electromagnetic radiations and electromagnetic waves of a different wavelength and different frequency. You know that according to this formula, C is equal to nu into lambda, and lambda is equal to C upon nu. It means the wavelength and frequency of the radiations is inverse of each other. So suppose violet color have lowest wavelength and red color have highest wavelength. Violet color has lowest wavelength means highest frequency because they are inverse of each other. ठीक है? So this complete concept represent the electromagnetic radiation also present in the sunlight source. Electromagnetic radiation have a different color with a different frequency and different wavelength, and this complete that we get on a photographic plate, this concept complete concept is called spectrum. And ये जो हमें जो get हुआ है ये एक पूरा spectrum है in a continuity form, not in a discontinuous form, without any gap. This is also called continuous spectrum. And the atomic spectrum is further divided into two types. The types are emission spectrum and absorption spectrum. Fine. So now we will study about the topic, that is emission spectrum. To explain the concept of emission spectrum, we will take this figure and this concept. In the last topic, in the continuous spectrum, we study about the point source. That point source is sunlight. But now the point source is discharge tube that is filled with the hydrogen gas, electric discharge tube that is filled with the hydrogen gas at the low pressure. And this discharge tube, when after applying the electricity, excite the radiation. And when this radiation passes through the slit, and why pass through the slit? Because this slit make the radiation become monochromatic and straight away. And this pass strike on the and disperse when passed through the prism, and it will be dispersed into a near about 4 to 5 color with the gap of a dark lines. With the gap of a dark gap is present between these bright color lines, and the color appear violet, blue, yellow, red. There is no different type of a color appear in a continuous form like a Vibgyor. Only 4 or 5 color appear in this concept. So it will be clear. It is also example of not a continuous spectrum. It is a completely discontinuous spectrum. Why it is called discontinuous spectrum? Because the bright color light separated with the dark region. ठीक है, तो आपको इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पता लगा. व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रम? हियर द पॉइंट सोर्स इज हाइड्रोजन. Here the point source is electric discharge that is filled with the hydrogen, and the color appear not in a continuous form, they appear in a discontinuous form, and the dark region is also present in the bright color region. This is the emission spectrum, and also we can say that this is a discontinuous spectrum because the colors are not one by one arranged. They are separated, they are gapped by the some dark color lines also. Okay. So now we will study about the what is absorption spectrum. Okay. Here we get also that is photographic plate, and we get the spectrum here. Now we will study about the absorption spectrum. Discuss about the absorption spectrum. So what is absorption spectrum? Here the point source that put on the prism, it is the sunlight also. Okay. And we pass the rays, the radiation from the slit to make the light monochromatic. And firstly, before put this radiation on the prism, firstly this prism, this radiation pass through the
दस NaCl सोल्यूशन, एंड NaCl सोल्यूशन क्या करेगा, येलो कलर की रेडिएशंस को क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, और हमें जो अपीयर होगा बेटा, यहाँ हमें डार्क लाइन्स अपीयर होंगी कुछ, बाकी हमें सारी डार्क लाइन्स हमें जनरली वहां अपीयर होंगी जहां पर येलो कलर, विबग्योर के केस में, स्पेक्ट्रम के केस में आपने देखा, या इमिशन स्पेक्ट्रम के केस में देखा, मैंने आपको 4 ब्राइट कलर्स दिखाए थे, रेड दिखाया, येलो दिखाया, ब्लू दिखाया, वॉयलेट दिखाया। तो येलो कलर के रीजन की जगह पर अगर NaCl के सोल्यूशन में से पास करते हैं तो कुछ रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लेता है NaCl सोल्यूशन, और वो जो कलर होता है, वो जो रेडिएशन वो अब्सॉर्ब कर लेता है, वहां पर हमें डार्क लाइन नजर आ जाती है, और बाकी जितनी भी एरिया होता है वहां हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नजर आता है। ठीक है, तो अगेन आई विल रिपीट, व्हाट इज अब्सॉर्प्शन। अब्सॉर्प्शन नाम से क्लियर है कि कुछ रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम सोल्यूशन या विद द हेल्प ऑफ सम अदर सोर्स। तो कुछ रेडिएशंस को हमने NaCl के सोर्स को हमने NaCl के सोल्यूशन में से पास किया। अगर हम सनलाइट के सोर्स को डायरेक्ट प्रिज्म के ऊपर रेडिएशंस को पुट करवाते तो डेफिनेटली हमें 7 कलर मिलते हैं, और वो भी कंटिन्यूस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, बट अगर NaCl का सोल्यूशन यहाँ क्या काम कर रहा है, कुछ रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर रहा है, तो बाकी तो हमें वही मिलेगा जैसे हमें एज अपीयर हुआ था विबग्योर के केस में, कंटिन्यूस फॉर्म में, बट सम डार्क लाइन आर अपीयर, एंड दिस डार्क लाइन आर अपीयर एट दैट पॉइंट वेयर द येलो रीजन इज प्रेजेंट। यहाँ पर येलो कलर, ऑरेंज कलर रीजन प्रेजेंट था, वो रेडिएशन, वो रेंज NaCl के सोल्यूशन ने क्या कर लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो दिस इज अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑल्सो, एंड अदरवाइज ऑल द एक्सेप्ट दीज 2 डार्क लाइन्स, अदर जो कलर्स होंगे वो कंटिन्यूस फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट होंगे। तो मेक ए डिफरेंस बिटवीन द इमिशन स्पेक्ट्रम एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, डिफरेंस बिटवीन इमिशन स्पेक्ट्रम एंड अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, अभी हमने देखा कि जिसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब ले रखी थी एज ए सोर्स दैट स्ट्राइक ऑन द प्रिज्म, एंड इट विल बी स्प्लिट इनटू ए सम कलर्स दैट इज रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड वॉयलेट, एंड द आफ्टर दैट ये जो बैंड बना रेड, ऑरेंज, ब्लू, इंडिगो, दैट कंटेन ए नंबर ऑफ सीरीज और नंबर ऑफ लाइन्स, दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन्स। उन्हें बाद में बोला गया स्पेक्ट्रल लाइन्स। मैंने भी आपको बताया इमिशन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे हमने एक जो सोर्स लिया, वो हमने हाइड्रोजन गैस, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमने हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ लिया, और एट द लो प्रेशर जैसे ही उसमें से रेडिएशंस पास हुई हाइड्रोजन गैस की डिस्चार्ज ट्यूब में से, तो वो हमने प्रिज्म के ऊपर जैसे ही स्ट्राइक करवाया तो इट विल बी स्प्लिट अप इनटू सम कलर, सम ब्राइट कलर, एंड बिसाइड दिस अदर्स आर गैप विद some bright color are appear and also some dark lines or dark gap are present between these bright lines। ठीक है, तो अभी हमने देखा जो भी सपोज ये बैंड बने, ये जो जितने भी रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, ब्लू कलर का और वॉयलेट कलर का, दैट कंटेन नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ सीरीज, दे आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइन्स। इन्हें बोला गया स्पेक्ट्रल लाइन्स बोला गया। ठीक है, और अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने, जे बाल्मर 1885 में एक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया। और क्यों किया ये फॉर्मूला एक्सप्लेन, बिकॉज आपको पता है अगर अलग अलग कलर आएंगे तो अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसने इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए ये जो लाइंस हैं, तो जितनी भी, जैसे रेड कलर है, रेड कलर कंसीडर एज ए बैंड, एंड द बैंड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एंड दीज स्पेक्ट्रल लाइंस हैव ए डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, सो पुट ए रिलेशन दैट द 1 upon lambda, and you know that 1 upon lambda is equal to nu bar, and nu bar is a wave number, is equal to 109677 1 upon n1 का स्केयर माइनस 1 अपॉन n2 का स्केयर, और उसने n1 के स्केयर की जगह ये वैल्यू पुट करी है 2। यहाँ पर एक्चुअली फॉर्मूला है n1 का स्केयर माइनस 1 अपॉन n2 का स्केयर। ये हमारी फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन है। ये हमारी, अगर n2 की बात करें तो ये हमारी सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन होगी, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन होगी। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट होती हैं एक बैंड के अंदर। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बताना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है 109677, दिस इज कॉल्ड रेडबर्ग। ये एक्सप्लेन किया था रेडबर्ग ने, ये कांस्टेंट वैल्यू, और इसे रेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताना है बेटा कि कैसे ये कंसेप्ट हमारा डेवलप हो रहा है, और ये बात हो रही है सिर्फ हाइड्रोजन के लिए। अगर मैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करूंगी, अगर मुझे इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो मुझे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करनी पड़ेगी, लाइक हीलियम,
पॉजिटिव, हीलियम पॉजिटिव का मतलब आप समझ गए हैं, या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव, दीज आर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, बिकॉज यू नो दैट हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज वो होंगी जिनमें हाइड्रोजन की तरह ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, तो वी विल टेक ए चार्ज हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली 2 पॉजिटिव का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो हीलियम का एक्चुअली इलेक्ट्रॉन 2 है, तो हीलियम 2 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1, तो दीज स्पीसीज लाइक ए हाइड्रोजन एटम, सो दिस विल बी मल्टीप्लाई। तो इस तरह की अगर स्पीसीज का हमें वेव नंबर या वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो हमने जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है। जेड यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा हमारा एटॉमिक नंबर को, हीलियम का हो गया या लिथियम का हो गया, जो भी हमें जेड की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, ये आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। सो नाउ हम बात करते हैं N1 की N2 की। तो सपोज बच्चे, ये तो हुआ बाल्मर का कंसेप्ट, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने अपने बेसिस पे दिया। आफ्टर दैट बहुत सारी डिस्कवरी हुई और जो भी नाम रखे गए, बाकी सीरीज बनाई गई, जैसे अभी तो एक मैंने सिर्फ बाल्मर सीरीज का बात करी है। तो अगर बहुत सी डिस्कवरी होने के बाद बहुत से डिस्कवरर आए तो उन्होंने अपने अपने नाम पर ये बैंड्स बनाए, जैसे लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पफंड, तो ये अलग अलग हमारे बैंड बनते हैं। तो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए। बात वही हो रही है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की, उसमें डिफरेंट कलर्स आए थे, बाकी डार्क लाइंस आई थी। तो वो जो ब्राइट कलर्स आपको अपीयर हुए थे उसके अंदर जो सीरीज थी उन्हें स्पेक्ट्रल लाइन सीरीज बोलते हैं। तो उस सीरीज में हमें अलग अलग यहाँ पर डिस्कवरर के बेसिस पे कंसेप्ट को क्लियर करना है। Numerical is what is the wavelength of light emitted when the electron in the hydrogen atom undergoes transition n equal to 4 to n equal to 2, what is the color of that region? So हमारे पास क्वेश्चन क्या है बेटा, हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। किसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है? जब हाइड्रोजन गैस से क्या एलिमिनेट होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट सोर्स बन रहा है, जैसे ही वो प्रिज्म पे पड़ेगा तो वो स्प्लिट होगा। या फिर आपको पता है हाइड्रोजन गैस के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक्साइट होंगे। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइट होंगे तो वो कौन से रीजन में जाएंगे, वो जितनी भी मैंने अभी आपको स्पेक्ट्रल सीरीज बताई हैं उस स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर N1, N2, N3, N4, तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में, या एक्साइटेड स्टेट से कहाँ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट में, इन ईच बैंड, यू नो दैट। और N1 की वैल्यू यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट है ये 4 है और ग्राउंड स्टेट यहाँ पर 2 है, तो मतलब ये N2 की वैल्यू है, N2 की वैल्यू 4, एक्साइटेड स्टेट 4 एंड द ग्राउंड स्टेट मींस ये N1 की वैल्यू है 2। और N1 की 2 वैल्यू मैंने आपको बताया था बाल्मर सीरीज के लिए, मैंने आपको बताई थी। और वो बाल्मर सीरीज के अंदर जो रीजन था वो रीजन था विजिबल रीजन, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। तो अभी हम बात कर रहे हैं व्हाट इज अ कलर, हमने कलर एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको ये फॉर्मूला बताया, दैट इज एक्सप्लेन बाय द जे बाल्मर एंड देन आफ्टर दैट एक्सप्लेन बाय द इक्वेशन, रेड बग इक्वेशन इसे बोला गया। तो क्या था, वेवलेंथ। अगर मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, कलर मैं किस बेसिस पे बता सकती हूँ, या तो वेवलेंथ के बेसिस पे या फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे। तो हमारे पास एक रिलेशन है 1/λ एंड यू नो दैट 1/λ इज इक्वल टू वेव नंबर न्यू बार एंड 1/λ इज इक्वल टू RH रेड बग कांस्टेंट, दैट वैल्यू इज फिक्स 109677 पर सेंटीमीटर एंड 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो एक्साइटेड स्टेट कितनी दिखा रखी है 4, पुट द वैल्यू। ग्राउंड स्टेट क्या दिखा रखी है 2। 1/λ वैल्यू हमने यहाँ पर हमने कैलकुलेट करेंगे तो हमने 1/λ था, बट हम रेसिप्रोकल करके यहाँ लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा 64/109677/2। तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ रही है 4.86 इंटू 10⁻⁵ पर सेंटीमीटर, बिकॉज ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है पर सेंटीमीटर में है। तो बट हमें कैलकुलेट करनी है, लैम्डा है शॉर्टेस्ट क्या बोल सकते हैं यूनिट होती है, इसकी शॉर्ट यूनिट होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत हमारी मीटर में कैलकुलेट की जाती है, इसे जनरली इसकी एसआई यूनिट हम या मान के चले नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में इसकी यूनिट लेके चलते हैं। और यू नो दैट द सेंटीमीटर को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मैंने जब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था तब भी मैंने जो रीजन लिया था, अगर मैं बात कर रही हूँ ये बाल्मर है और बाल्मर का मुझे कैसे पता चला, N1 की वैल्यू 2 है। अभी मैंने एक बॉक्स बनाया था, आपने देखा था बाल्मर के लिए मैंने जो N1 लिया था वो क्या लिया था 2 लिया था। और वो किस रीजन में लाई कर रहा है, वो लाई कर रहा है विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन किसमें स्प्लिट होता है, 7 कलर में, विब ग्योर में, ठीक है। तो विब ग्योर में मैंने आपको जो यूनिट बताई थी वो 380 या 380 से लगभग 700 नैनोमीटर तक मैंने आपको वो वेवलेंथ की रेंज बताई थी। तो मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पर 486 नैनोमीटर। 486 नैनोमीटर लगभग बेटा लाई करता है ब्लूइश ग्रीन रीजन के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको एक रेंज बताई थी पूरी, लगभग 380 से लेकर 700 तक की, कुछ बुक्स में वैरी करती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 300 to 700 तक भी ले सकते हैं। तो ये जो रेंज है 486 रेंज जो दिख रही है वेवलेंथ की, ये लाई
करती है ब्लूइश ग्रीन रीजन के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कलर, तो आपका आंसर है ब्लूइश ग्रीन कलर। ठीक है, आई होप यू understand this concept because ये concept related to Rydberg equation but firstly initiate by the concept J.J. Balmer। ठीक है, और उसके बाद Rydberg equation के concept से हमने N1 की वैल्यू लाइमन के लिए 1, बाल्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4, पफंड के लिए 5 और N2 की वैल्यू अप टू जा सकती है इन्फिनिटी तक। और अगर ये वैल्यू इन्फिनिटी दे रखी है आपको कि N2 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या, या फिर आप यहां से दे दिया न्यूमेरिकल के अंदर वेवलेंथ इज वेरी शॉर्टेस्ट, तो अंडरस्टूड है जो N2 की वैल्यू है वो आपको क्या कंसीडर करनी है, इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी यू नो दैट इक्वल टू 0। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। According to Bohr's model of an atom, and what are the postulates that are related to Bohr's model of an atom? The first postulate is an atom consists of a positive charge. एटम में पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल न्यूक्लियस सेंटर में होगा और उसके अराउंड एक फिक्स पाथ होंगे जिन्हें ऑर्बिट्स बोला जाएगा, और उन्हीं फिक्स पाथ को सर्कुलर ऑर्बिट्स बोला जाएगा, सर्कुलर पाथ बोला जाएगा। और ये जो वैल्यूज होंगी, ये पहला जो इन्हें शेल्स भी बोला जाएगा, इसे 1 2 3 4 करके रिप्रेजेंट किया जाएगा। और ये जो 1 2 3 वैल्यूज होंगी, दीज 1 2 3 वैल्यूज ऑल्सो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि LMN नाम से रिप्रेजेंट होंगी। So what is the first postulate of Bohr? The first postulate of Bohr is in the center an atom consists of a positive charge nucleus that is present in the centers, and the electrons revolve around present in a circular orbits and always revolving around in a circular orbit. That circular orbits are also called shells. Shells are n equal to 1 2 3 and also called KLMN shells. Fine. And the second postulate is the energy of electron not change with time. ये जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन और डिफरेंट ऑर्बिट्स के अंदर, इनकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, ये अपनी एनर्जी से रिवॉल्व करते रहेंगे। इनकी एनर्जी तभी चेंज होगी जब ये एक्साइट होके या एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने शेल को छोड़ के डिफरेंट शेल में मूव करेंगे। अदरवाइज इनकी एनर्जी अपने शेल में क्या रहेगी, स्टेशनरी रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, इन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड इज द ओनली दोज ऑर्बिट परमिटेड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल मल्टीपल ऑफ एन h अपॉन 2π। तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, ये आपको कभी फिजिक्स में आप बहुत अच्छे से और भी डिटेल में पढ़ पाएंगे। MVR रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू n h upon 2π means according to Bohr the orbit permitted, those orbit permitted, वही ऑर्बिट अच्छे से वहां परमिट होंगे अराउंड द न्यूक्लियस whose angular momentum, जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होगा। मोमेंटम आपको पता है, अब आप एंगुलर मोमेंटम भी धीरे धीरे फिजिक्स के कंसेप्ट में सीखेंगे। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है बेटा, उन्होंने कहा कि NH अपॉन 2π, मतलब अगर n क्या है यहाँ पर, n वही है 1 2 3, फर्स्ट ऑर्बिट होगा तो n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू 2 होगी, एंड h अपॉन 2π, h आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट के इक्वल होनी चाहिए। तो MVR एंगुलर मोमेंटम इज द होल नंबर n, एंड n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड multiply by h upon 2π. These orbits are only permitted that angular momentum of these orbits is equal to whole multiple of h upon 2π. This is the third postulate. And the last postulate of the Bohr's model, फिर हम पढ़ेंगे Bohr's की सक्सेस थ्योरी, बट अभी फोर्थ पोस्टुलेट की बात करें तो फोर्थ पोस्टुलेट ये था Bohr's का। तो फोर्थ पोस्टुलेट इज द एनर्जी इमिटेड और अब्सॉर्ब। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी को इमिट भी करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, और जब वो इमिट और अब्सॉर्ब करते हैं तभी वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो सपोज मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर उसने एनर्जी अब्सॉर्ब करी है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, अपनी इवन स्टेट से कहाँ जा रहा है, E2 स्टेट में जा रहा है। और अगर उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज करी है, ठीक है, एनर्जी अब्सॉर्ब करते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू अगेन शिफ्ट टू दिस पॉइंट।
ठीक है। तो N1 शेल से पहला गया, अब्सॉर्ब करके N1 फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में गया और एनर्जी जब इमिट करी तो सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में वापस आया। ठीक है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द नील्स बोर। तो नील्स बोर का क्या कंसेप्ट था, और बेटा ये एनर्जी का कंसेप्ट आप ऑलरेडी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू एच न्यू में। ठीक है। और न्यू इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो पीछे से सारा रिलेशन लेके चलेंगे तभी आगे फर्दर न्यूमेरिकल सोल्व हो पाएंगे। तो अगेन आई विल रिपीट व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोहर्स मॉडल। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज in the atom, nucleus present in a center that carry positive charge and electrons are revolve around in a fixed path. That fixed path are called orbits and they are called circular path. They are also called shell. N equal to 1 is equal to K, N equal to 2 is equal to L, N equal to 3 is equal to M, so on. ठीक है। And second is the energy of the electron that are present in a shell, fixed shell. अपने शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी फिक्स रहेगी। अगर वो शेल को छोड़ के फर्दर शेल में मूव करेंगे तो एनर्जी उनकी लॉस गेन डिपेंड करती है। थर्ड इज दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, वही ऑर्बिट परमिट होंगे न्यूक्लियस के राउंड, देयर एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। ठीक है। एंड द फोर्थ इज द एनर्जी इमिटेड और अब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन ओनली व्हेन, एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे या इमिट करेंगे जब तभी वो अपने शेल को छोड़कर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड और एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेट चेंज कर रहा है तो इसका मतलब वो एनर्जी अब्सॉर्ब या इमिट कर रहा है। दिस इज द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द सक्सेस दैट आर रिलेटेड टू द बोहर्स मॉडल। तो व्हाट इज द सक्सेस थ्योरी ऑफ बोहर्स मॉडल। So what are the success of Bohr's model? So there are a number of success that include in the Bohr's model concept. So first is Bohr's model explain the stability of an atom. Second is Bohr's model explain the spectra of hydrogen atom in a very successful way. Third, Bohr's model explain the number of spectral lines that are present in a series. You know that 5 series मैंने आपको डिस्कस करी, लाइमन, बाल्मर, पार्शियन, ब्रैकेट। तो उसके अंदर कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट हैं उन्हें कैलकुलेट करना बोहर्स मॉडल की हेल्प से हमने सीखा। अगर मैं बात करूं थर्ड पोस्टुलेट की, तो एनर्जी प्रेजेंट ऑफ एन बात कर सकते हैं कि कोई भी एनर्जी या जितनी भी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के पास, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उनके पास कितनी एनर्जी है वो कैलकुलेट करनी सिखाई। और द इलेक्ट्रॉन when the electron present in a orbit and then the radius of the orbit calculate with the help of a Bohr's model concept, with the Bohr's concept, and the velocity through which electrons are revolving, उस velocity कैलकुलेट करनी सीखते हैं हम इस कंसेप्ट की हेल्प से। नेक्स्ट कंसेप्ट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। जो इलेक्ट्रॉन है वो जब घूमते हैं न्यूक्लियस के अराउंड तो वो कितनी रेवोल्यूशन लेते हैं वो कैलकुलेट करनी सीखी हमने बोहर्स मॉडल की कंसेप्ट से। And the last one is the ionization energy of the hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम को कितनी आयोनाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होती है, वो भी हमने कैलकुलेट करनी सीखी बोहर्स मॉडल के कंसेप्ट से। तो दे आर नंबर ऑफ सक्सेसेस या बोल सकते हैं दिस इज द सक्सेस थ्योरी ऑफ बोहर्स मॉडल। तो इस सक्सेस थ्योरी को हम, बोहर्स मॉडल की सक्सेस थ्योरी को कल हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी मैंने आपको ब्रीफली बता दिया कि क्या क्या हमारी थ्योरी रही थी रिलेटेड टू, या व्हाट आर द कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू द बोहर्स मॉडल दैट इंक्लूड इन द सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल। सो आज के लिए इतना ही। तो टुमारोज टॉपिक फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट दिस सक्सेस थ्योरी एंड देन we will study about the concept of the de Broglie and Heisenberg.